Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our fifth chapter natural vegetation. आज हम इस चैप्टर में उन सारी वेजिटेशन कवर की बात करेंगे जिनका प्रिंस नेचुरली हुआ है. Students, India is a variety of physiographic division and of course we are having a different kind of climatic cover as well. So the variety of physiography and the variety of climatic condition, they both are affected, they both can affect the environment, they both can affect the natural environment. So firstly let us discuss about the natural vegetation, what it means. Students, the term natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long period of time, so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and to soil conditions as fully as possible. Natural vegetation उन प्लांट कम्युनिटी से रेफर करता है जो कि बहुत लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं और जहां हर प्रत्येक प्रजाति को, हर स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को अपने अकॉर्डिंग सर्वाइव करने का, यानी कि क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने का पूरा मौका मिलता है, जिसे हम नॉर्मल सी भाषा में जंगल कहते हैं. So nowadays the forests are converted in a picnic spots, right? Normally अब हम लोग जंगल को एज अ पिकनिक स्पॉट देखने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल सरिस्का, रणथंभौर, ये है जंगल, लेकिन अब हमारे लिए पिकनिक स्पॉट के तौर पर काम आ रहे हैं, जहाँ पर वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फौना एक साथ देखने को मिलता है. और ये फ्लोरा, फौना और ये नेचुरल वेजिटेशन जो है, इन पर क्लाइमेटिक कंडीशन का पूरा असर होता है. और शायद इसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमारा पूरा अर्थ डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन कवर वाला है. So students, India is a land of great variety, right? We are having the variety of natural vegetation. Why? Because we are having a different kind of physiographic division. Himalaya heights are marked with the temperate vegetation. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, which is called the Tropic of Cancer. It separates India into two climatic zones. इसके ऊपर वाला हिस्सा टेम्परेट रीजन है और हिमालय इसी टेम्परेट एरिया में आता है. The Western Ghats and the Andaman Nicobar Island have tropical rainforest, जबकि वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार ये ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, राइट? The deltaic regions have tropical forest and mangrove. डेल्टाइक रीजन में, जो कि कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति मिलती है. And the desert and the semi-desert area of Rajasthan are known for the cacti, a wide variety of bushes and thorny vegetation. तो ये है डिफरेंशिएशन, ये है डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन. हम ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरे इंडिया में डिफरेंट तरीके के नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं. So, on the basis of certain common features such as predominant vegetation type and the climatic regions, the Indian forest can be divided into 5 main groups. And these 5 main groups are undercovered in the types of forest. They are tropical evergreen and semi-evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, montane forest, and last but not the least, littoral and swamp forest. So let we examine, start analyzing them separately. Start with the first one, the tropical evergreen and the semi-evergreen. So students, these tropical evergreen and semi-evergreen forests, they are found in the western slope of the Western Ghats, and of course in the hills of the northeastern region, and of course the Andaman and the Nicobar. So these are the 3 main reasons for the evergreen forest, tropical evergreen forest. ये 3 हिस्से हैं
जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन सा है? वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट का, हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. They are found in warm and humid areas with an annual precipitation of over 200 cm. And of course, the mean annual temperature is above 22 degree Celsius. तो ये दो इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन जगहों पर लगता है जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म और ह्यूमिड हो, जहाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर हो 200 सेंटीमीटर के, और जहां पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस अबव रहे साल भर. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड विद लेयर्स. इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की खासियत इसके लेयर्स हैं. जंगल में वैरायटी ऑफ वेजिटेशन कवर होता है और इसीलिए ये बिल्कुल जंगल जैसा नजर, मतलब एक डिफरेंट लेयर्स जैसा नजर आता है. ग्राउंड to the ground and the covered with the shrubs and creepers, with short structured trees followed by a tall variety of trees. 60 मीटर से ऊपर वाले पेड़ के साथ साथ छोटे पौधे और घास और क्रीपर्स, बेलें. इस तरीके से ये डिफरेंट लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और ऐसे ही जाने कितने लेयर हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट डिफरेंस ऑफ द वेजिटेशन कवर. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और अबव. जमीन पर उगने वाले श्रब से लेकर के एवरेज हाइट 60 मीटर से भी ज्यादा है यहाँ के पेड़ों. देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. एक और स्पेशलिटी कि इन जंगल के पेड़ों में शेडिंग वाला समय कब आएगा ये स्पेसिफिक नहीं होता. शेडिंग टाइम मींस वो टाइम जब पेड़ अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, हम पतझड़ कहते हैं. फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन का सिस्टम भी डिफरेंट होता है, इसीलिए पूरा जंगल हमेशा हरा भरा दिखता है. तो as such these forests appear green all the year round. And species found in these forests included mainly rosewood, mahogany, any ebony. These are the major species found in the evergreen forest. Now let's discuss about the semi-evergreen forest. नाम से पता चल रहा है ऐसा हिस्सा जहां पर evergreen से कम forest cover हो. So the places which receives less rainy season, they are having the semi-evergreen forest vegetation. And such forests have a mixture of evergreen and the moist deciduous trees. सेमी एवरग्रीन है तो इसमें डेसिडियस वाले पेड़ और एवरग्रीन वाले पेड़ दोनों का एक मिला जुला संयुक्त रहता है. तो द अंडरग्रोइंग क्लिम्बर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दीज फॉरेस्ट. इस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्लाइंबर्स जो होते हैं, जिन्हें हम बेल कहते हैं, वो एक एवरग्रीन कैरेक्टर प्रदान करते हैं. द मेन स्पीसीज आर व्हाइट शेडार, हलॉक एंड केल. दीज आर द मेजर स्पीसीज ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. जरा हम ऑब्जर्व करें इस गिवन मैप को. इस गिवन मैप को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो ब्लैक शेडेड एरियाज हैं ये तो हैं लिटोरल स्वाम्प फॉरेस्ट वाले. जो डॉटेड एरियाज हैं ये हैं माउंटेन फॉरेस्ट. ये थोड़ा डार्क शेडेड एरिया ये ऐसा वाला, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये हिस्सा, और ये पूरा ईस्टर्न हिल एरिया. इससे कम शेड वाले ट्रॉपिकल डेसिडियस और बहुत कम शेड वाले थॉर्न फॉरेस्ट. So these are the variety of natural vegetation which is found in the landmass of India. Students, we know that we are colonized under British rule. Students, as you know that we all are, means our India is colonized under British rule. So at the time of Britishers, the British were aware of the economic value of the forest. जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कैप्चर किया, इंडिया को अपना गुलाम बनाया, तो ब्रिटिशर्स बहुत अवेयर थे. वो जानती थी कि फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है और इसी वजह से उन्होंने लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन किया जंगलों का.
एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वाज आल्सो चेंज। और इतना ही नहीं, उन्होंने फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर भी बदला। पहले जहाँ वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन था, अब उस जगह पे जंगल काट करके वापस पेड़ ग्रो किए, लेकिन प्लांटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लाइन से अपने नेसेसिटी वाले पेड़ लगाए, और वो पेड़ जिनसे उनको टिम्बर मिलता था। ऐसा क्यों किया? बेसिकली दे इंट्रोड्यूस द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड द कुमाऊं। These were replaced by the pine, which was needed to lay railway lines. उन्होंने पहले से मौजूद ओक फॉरेस्ट, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों में पाया जाता था, उसको रिप्लेस किया पाइन ट्रीज से, क्योंकि पाइन की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी जो है, वो रेलवे स्लीपर्स बनाने के काम आ रही थी। फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी। इतना ही नहीं, नया प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए, कमर्शियल क्रॉपिंग करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। एंड द ब्रिटिश आल्सो यूज्ड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज as an insulator of. Now the protectional use of forest was thus replaced by commercial. पहले जहां जंगल एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर था, उस प्रोटेक्शनल यूज सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया कमर्शियल यूज के लिए। So this is all about evergreen and semi-evergreen forests. Now let's move to the other topic, the tropical deciduous forest. नाम से पता चला deciduous means पतझड़, ऐसे पेड़ पौधे जो साल के एक समय में अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। They are shedding their leaves. So these are the most widespread forests in India. वैसे इंडिया के ज्यादातर लैंड हिस्से में यही फॉरेस्ट मिलते हैं, and they are also called the monsoon forest. They spread over region which receive rainfall between 70 to 200 centimeter, and on the basis of the water availability, these forests are further divided into moist and dry deciduous. तो इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, moist deciduous or dry deciduous. Right? Students, the plains of Uttar Pradesh. The moist deciduous forests are more pronounced in the region which record rainfall 100 to 200 centimeter. हमने बताया है 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ होती है, वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट कवर मिलते हैं। और उसमें भी हमने दो कैटेगरी बना ली, मॉइस्ट की और ड्राई की। मॉइस्ट फॉरेस्ट जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ड्राई जहां बिलो 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। So these forests are found. Which forest? The moist deciduous forests are found in the northern eastern states along with the foothills of Himalaya, eastern slopes of Western Ghat, Odisha, and the major plant species of these forests are teak, sal, shisham, hurra, mahua, amla, senul, kusum, and sandalwood, etc. These are the main species, right? Now let's move to the dry deciduous. Dry deciduous जिसमें 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती हो, below 100 and above 70. So on the wetter margins, it has a transition to the moist deciduous. जो wetter margin है, वहां पर dry deciduous moist में convert हो जाते हैं. These forests are found in the rainier areas of the peninsula and Uttar Pradesh and the plains of Uttar Pradesh and Bihar. कौन से वाले हम बात करें? ड्राई deciduous. So in the higher rainfall regions of the peninsular plateau and the northern Indian plain, these forests have a parkland landscape with open stretches. Parkland बिल्कुल grassland जैसा होता है, ऐसा लैंडस्केप नजर आता है उन इलाकों में जो कि थोड़े हाइयर रेनफॉल रीजन है पेनिनसुला, in which basically the teak and other trees interspersed with the patches of grasses are found. teak और अदर ट्रीज का एक सिस्टम मिलता है ग्रासेस के बीच में। पार्कलैंड साउथ अफ्रीका वाले रीजन में पाए जाने वाले ग्रासलैंड को है। सिमिलरली वैसा ही सिचुएशन इंडिया के साउदर्न पार्ट में देखने को मिलता है। तो एज द ड्राई सीजन बिगिन, अब इसकी खासियत क्या है? जैसे जैसे ड्राई सीजन स्टार्ट होते हैं, द ट्रीज स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स कंप्लीटली एंड द फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ वास्ट ग्रासलैंड एंड नेट ट्रीज ऑल अप। खासियत ये है कि एक समय आता है जब ट्रीज अपनी
लीव्स को शेड करना शुरू करती है और तब पूरा का पूरा जंगल बिल्कुल खाली नजर आता है, बिल्कुल ग्रासलैंड जैसा नजर आता है. The major vegetation cover which is found in the dry deciduous forest, these are tendu, palas, amalthas, bale, cat, axle. Right? In the western and the southern part of Rajasthan, vegetation cover is very scanty. Western राजस्थान की तरफ और साउदर्न पार्ट में वेजिटेशन कवर बहुत ही स्कैंटी है, मीन्स कम है. वजह रेनफॉल का कम होना और ह्यूमंस का अपने कैटल्स को ओवरग्रेजिंग करना. So these are the two responsible factors. In my next video, I will explain the tropical thorn forest. Till then, thank you and have a nice day.